ઓકે તો આજે પેલો મોટિવેશનલ નો ટાઈમ નથી, રાઈટ? So today directly we'll start our agenda, and in agenda you know that in video you have learned about format of profit and loss account and format of balance sheet of banking companies. These two things you have already seen in a video. On that basis we are going to continue with this preparation of example or calculation of example. So today's agenda is to learn about preparation of profit and loss account of banking companies. So how the banking company is preparing. So with example we are going to learn. So page number 105, page number 105 of your pamphlet. Uh, that is Vasant Bank Limited, right? I hope that you can see this screen also. So is screen is visible to all? Yes, sir. Okay. So Yes, from the sir. following, Yes, sir. yes, from the following information, prepare profit and loss account of Vasant Bank Limited for the period ended 31st March 2004. Interest on loan, etc., is given, right? So interest on loan, interest on fixed deposit, commission, exchange, brokerage. If this income is there, we need to learn what is the interest earned and what is other income. That classification is required, right? So whenever we learn, classification is required. Interest on cash credit, interest on temporary overdrafts in current account, right? This is interest on cash credit. Gross is given, right? So what we'll do, that we'll learn interest on saving bank deposit, postage, telegram stamp, printing and stationery, etc., etc., and audit fees and other expenses. So additional information we'll read and we'll tick wherever it affects, right? First is rebate on bills discounted. Rebate on bill discounted. You know what is rebate on bill discounted? That concept I have not clarified till now. But do you know this rebate on bill discounted? Anybody know? So let me clarify this rebate on bills discounted. Rebate on bills discounted. So what do you mean by rebate on bill discounted? Whether it is income or whether it is expense, whether it is assets or whether it is liability, that we need to learn, right? So rebate or is it a discount or something like that? Okay. So you know that बैंक क्या कर रही है कि वो जो बिल्स होती है ना, बिल्स इन गुजराती वी कॉल हुंडी, right? So bill, whatever the bills exchange between debtors and creditors, so they can discount with the bill, right? So before this rebate on bill discounted, we must learn or we must understand how these bills are being exchanged, right? So first I will clarify how these bills are exchanged between parties, right? For example, this is me. This is Yagnesh, for example, right? And you are X, Y, Z, right? This is you, right? And this is me, right? So what we have done? I have sold goods worth rupees 10,000 to you. I mean, I have goods worth rupees 10,000 sold to you, and you have promised that I will pay after 3 months, right? After 3 months, I will pay. So I am saying that it is on credit sale and whatever, okay, 3 months he will give. But suppose I don't have trust or I need money, right? So I can ask for the bills. So I will draw a bill. मैं bill बनाऊंगा, right? And I will send to you. I will send to you. मैं आपको ये bill भेजूंगा. You will accept because you have accepted that after 3 months I'm going to give you what? The money, 10,000 rupees, right? You have accepted. So now this bill is I'm drawing this bill. मैं bill बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मैं 3 महीने के बाद इतना 10,000 रुपए देने के लिए आपसे आपसे बंधित हूँ, ऐसा बिल मैंने आपको
लिख के भेजा एंड यू विल एक्सेप्ट, राइट, यू विल एक्सेप्ट बिकॉज आपको तो 3 महीने के बाद देना ही है ना, तो यू विल एक्सेप्ट एंड यू विल गिव इट बैक टू मी, राइट. सो फॉर मी दिस इज बिल्स रिसीवेबल and for you is a bills payable. I hope that you understood this thing, right? So the creditors draw the bill and send to the debtors. Debtors accept the bills and give it back to whom? The creditors. Now this is a transaction. So after 3 months, you are going to give me what? 10,000. So it is assurance, it's my assurance that I'm going to get 10,000. But no, I want 10,000 rupees, or I want money, right? So what is the procedure? The bank comes in a picture, right? The bank comes in a picture. So what I will do? I will give this bill to bank. Now look at the bank. बैंक के नजरिए से देखते हैं ना हम, तो क्या होता है कि बैंक सोचा है कि इसको 10,000 चाहिए, मतलब 10,000 की बिल दे रहा है, तो वो ले लेगा, बैंक विल एक्सेप्ट, राइट, और उसको डिस्काउंट करके देगी, राइट. तो ये 10,000 का बिल, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत जरूरत है पैसे की, मैं 10,000 का बिल बैंक को देता हूँ, और बैंक मतलब वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जो पैसा है वो दे दूंगा, और अ, वो 10,000 का 3 महीने का इंटरेस्ट, राइट, वॉट एवर द रेट 3/12 इंटू वॉट एवर द रेट ऑफ परसेंटेज, उसका 100, वो माइनस करके किस में से, 10,000 में से माइनस करके जो भी है वो मुझे दे देगी, जो भी अमाउंट आएगी वो मुझे दे देगी. बैंक के पर्सपेक्टिव से देखे कि उसको 10,000 नहीं देना है, अभी 10,000 में से कम देना है, क्योंकि ये 10,000 मुझे कब मिलेगा? आफ्टर 3 मंथ्स, राइट. तो अभी देखे कि जो ये बैंक है, तो बैंक को फायदा हो गया कि इतना डिस्काउंट उसको मिल गया, इंटरेस्ट डिस्काउंट उसको मिल गया, क्योंकि अभी 10,000 नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 500 रुपया हो रहा है, राइट, 500 रुपीज हो रहा है, तो 9,500 आई नीड, मतलब बैंक मुझे देगी. तो मेरा तो क्या होगा कि भाई 3 महीने के बाद 10,000 लेने से अभी मेरा ना वर्किंग चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, 9500 से सेटल हो जाऊंगा. मतलब मैंने ऑलरेडी आप में प्रॉफिट ले ही लिया था, तो इट्स ओके, राइट. तो मेरा तो 9,500 आई कैन री इन्वेस्ट इन माई बिजनेस. बैंक का क्या हुआ कि उनको 500 रुपीज क्या मिल गया, उसको डिस्काउंट मिल गया. डिस्काउंट मतलब उसने जो बिल्स डिस्काउंट किए, उसका उसका डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो बोले, उसको मिल गया. अभी ये एक ट्रांजेक्शन हो गया बैंक का. अभी 3 महीने के बाद तो कुछ होने वाला है ना, क्योंकि 3 महीने के बाद आपने तो एक्सेप्ट किया था ना कि मैं आपको 10,000 दे दूंगा. एट दैट टाइम बैंक विल आस्क टू यू, अरे भाई 3 महीने हो गए, मुझे 10,000 दे दो. तो आप क्या करोगे? आप 10,000 दे दोगे, बैंक को 10,000 मिल जाएगा, आपका 10,000 गया, मुझे ना 9,500 मिला, 500 बैंक का. तो बैंक ने ये फैसिलिटी क्रिएट की है, राइट. बैंक ने क्या किया है? ये फैसिलिटी, और ज्यादातर कमाई इसमें भी होती है. तो क्या हुआ, 500 रुपीज इज अ प्रॉफिट और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता है ना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. तो ये जो रकम है वो क्या बोलती है? इनकम बोलते हैं, राइट. तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पता चल गया. तो बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें आप, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट उनको मिल गया. मतलब क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट इनकम ऑफ बैंक. ये तो हमारा है ना, ये पर्सनल है, ये पर्सनल जाने दो, हमको तो बैंकिंग बैंक का ही सोचना है ना. तो बैंक को इतना फायदा हो गया, राइट. तो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट. अब तक जो चलाया है इसमें कोई भी किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अभी अभी समझाने जा रहा हूँ. ये डायरेक्ट डायरेक्ट समझाऊंगा ना, तुमको नहीं आएगा, राइट. किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी तक समझाया नहीं समझ में आया, तो आपके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, राइट. आपके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं.
ઓકે, અમુકથી જોઈન નથી થવાતું ને? ઓકે, થઈ ગયા હવે. बिकॉज दे कम लेट. जो लेट आया उसका अभी पेंडिंग था, सॉरी. राइट. अभी किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा है कोई? किसी को समझ में नहीं आया? नहीं है. ओके, तो मैं ये मानता हूं कि सबको समझ में आ गया. राइट. सबको समझ में आ गया. नाउ नाउ नाउ, एक मिनट, उनको वेलकम करने दो भैया. कहाँ गए सब? आगे. 45. ओके. तो मतलब ये 500 है ना, हमारा ट्रांजैक्शन था ना, उसकी इनकम हो गई है. और मान लो कि ऐसी 100 बिल्स है वो डिस्काउंट की है. कभी मैंने दी है, कभी आपने भी दी है, किसी को, किसी के पास आप हो गई 100. तो क्या हुआ? 500 और डबल जीरो मतलब 50,000 उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई ना, बैंक की इनकम हो गई. नाउ द पॉइंट हैज राइज. अभी पॉइंट आया है. तो व्हाट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? तो हमको पता है कि अकाउंटिंग ईयर कौन कौन सा होता है. तो 1/4/2020 से स्टार्ट होके 31/3/21 तक होगा कि नहीं? यस सर, होगा. राइट. और यहां से यहां की इनकम, इनकम हमको मेजर करनी पड़ेगी ना. क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक साल तक आपने जो कमाया ना इनकम, उसका कंपैरिजन करेंगे आप एक साल के एक्सपेंस से. ये मैच करके आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो यहां से यहां का प्रॉफिट हमको निकालना है. तो यहां से यहां की इनकम मेजर करनी पड़ेगी, यहां से यहां की एक्सपेंस मेजर करना पड़ेगा. मतलब यहां का कुछ भी है इनकम, तो इसमें नहीं आना चाहिए. इजंट इट? तो अभी मुझे बताओ कि ये 50,000 जो इनकम है, तो यहां से ही स्टार्ट होती है हर बार कि भाई 1/4 को मतलब 1 अप्रैल को हमने डिस्काउंट किए, तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा होता है नहीं. कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है ना, ये 500 वाला, मान लो कि ये मार्च का ही है, 100 बिल मार्च में ही, 1 मार्च के, राइट, 1 मार्च के ये ट्रांजेक्शन है. तो अभी समझने की कोशिश करिए, हमारा एस एस अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 1/4/2020. और कंप्लीट कब होगा? 31/3/21 में. तो 21 में 1/3/21, यहां से यहां का है ना. तो 1/3/21 को फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 का हमने इनकम जनरेट किया. किसका? 100 जो है वो बिल्स डिस्काउंट करके 500 इच हमको मिला. फॉर एग्जांपल बैंकिंग की तरफ से ही हम सोचना है. राइट. नाउ दिस 50,000 इज इनकम फॉर 3 मंथ्स. कब का है? 3 मंथ्स का है ना, 3 महीने का है भाई. क्योंकि अभी तो वो किया है ना. तो 1 मंथ ये रहा. राइट. मैं दूसरी पेन लेता हूं, चलो. ये 1 मंथ हुआ ना. तो ये कब होगा? तो 3 4 5, मतलब 31/5/2021 में यहां से यहां की इनकम है कि नहीं है? 50,000. 50,000 इनकम कहाँ की है? यहां से यहां की, क्योंकि 3 महीना है ना. तो ये 3 महीना हो गया. तो 3 4 और 5, 3 महीना हो गया. यू गॉट दिस पॉइंट? अभी देखो, हम क्या कर रहे थे कि भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां तो ईयर क्लोज होता है, यहां तो ईयर क्लोज होता है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट में यहां से यहां जो इनकम हुई और यहां से यहां जो एक्सपेंस हुई उसको मैच करना है. तो इनकम एंड एक्सपेंस इसको मैच करना है. लेकिन ये इनकम कहाँ है? ये तो 3 महीने की है. तो यहां 1 मंथ falls in this year and 2 months falls in the next year. हो सकता है ना, ये 50,000 है. तो एक वो 50,000 इनकम कितनी किसकी है? 3 महीने की है. राइट. 3 महीने की है. तो ये 1 महीना इस साल में आ गया, मतलब 2021 में आ गया.
और बाकी का 21 22 में वो तो नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तब हम करेंगे ना। तो अभी ये 1 मंथ का इट फॉल्स इन दिस ईयर, 2 मंथ्स का फॉल्स इन नेक्स्ट ईयर। तो हमको तो ये 500 तो अभी इनकम गिनी जाएगी ना हमको, क्योंकि 50,000 हमारी इस महीने की, और इस मंथ में हमने 1/3/21 में ही किया, तो हमारी इनकम कब जनरेट हो जाएगी? 50,000 इस महीने में। लेकिन इसमें से 2 महीने का तो नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि एक महीना ही यहाँ फॉल होता है, राइट। इन दैट केस whatever the amount of 50,000 into 2/3, क्योंकि 2 महीना नेक्स्ट ईयर का है, एक महीना यहाँ का है, तो ये जो अमाउंट हुई ना, तो ये है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इट मींस दैट इन डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस इस साल में नहीं आ रहा है हमारा, क्योंकि 2 महीना तो नेक्स्ट ईयर का है। तो ये जो अमाउंट आ गई वो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। 2/3 पार्ट ऑफ 50,000 फॉल्स इन नेक्स्ट ईयर। तो ये जो आता है, इट इज नथिंग बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और उनकी जर्नल एंट्री, ये 50,000 इंटू 2/3 करो, कितना होता है? 50,000 इंटू 2/3, 50,000 इंटू 2/3 करो, कितना होता है? 33,333। 33,333, राइट। तो जर्नल एंट्री कौन सी आएगी? जर्नल एंट्री आएगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, जो इनकम का है हमारा, 33,333 टू रिबेट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 33,333। मतलब लास्ट डे पर ये एंट्री होगी। मतलब हमारी जो इनकम है वो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब ये हुआ कि 33,333 जितनी भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट होगी इसमें से माइनस करेंगे। इट इज नथिंग बट प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो हम क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते थे तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते थे? माइनस करते थे। तो हमको क्या करना है? यहाँ माइनस कर देना है। तो गेट बैक टू योर क्वेश्चन, यहाँ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000, 30,000 अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ जो है ना, मतलब ये माइनस कर देना है, ये डिस्काउंट ऑन बिल्स, राइट। ये इसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यहाँ टिक करेंगे डिस्काउंट ऑन बिल्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, वो सब हम साथ में करके करेंगे। तो यहाँ ये माइनस करना है, राइट। ये ऑलरेडी 1000 में है, राइट। तो ये 1000 में होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 30 ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखो ये इसमें गलत ना हो जाए, ये रुपीज इन 1000 मतलब 3 0 काट दिए, तो यहाँ रुपीज इन 30,000, 1000 नहीं है, 30 है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको स्ट्राइक आउट करेंगे एंड रुपीज इन 1000 लिखेंगे। सिंपल बात है, राइट। देन सेकंड, तो ये हमारा माइनस करेंगे, तो यहां से माइनस होगा। सेकंड इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सैलरी है नहीं है, तो ये लिख देंगे सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जितनी है। बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे? किसको पता है बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे हम? बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ आएगा? कोई बताएगा मेरे को? बैड डेट्स कहाँ आएगा? बैड डेट्स आएगा प्रोविजन में। कहाँ आएगा? प्रोविजन में लिखेंगे, राइट। ये एक्स्ट्रा शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। बैड डेट्स हम प्रोविजन में लिखेंगे, ओके। ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बी मेड एट 55%, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, राइट। तो ये कहाँ लिखेंगे? ये तो स्टेटमेंट में ही आता है सर, रहने दो, कहीं नहीं आएगा। स्टेटमेंट में ही लिखते हैं ना इनकम टैक्स प्रोविजन, और बाद में प्रोविजन में आएगा। तो ये बैड डेट्स लिख देंगे हम, राइट। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑफ 40,000 फॉर डाउटफुल डेट्स और रैंगली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, राइट।
तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन 40,000, 40,000 की जगह हम 40 पढ़ेंगे। ऑन डाउटफुल डेट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे शेड्यूल नंबर 13 में। जब आएगा तब हम माइनस करने वाले हैं, राइट। तो शेड्यूल नंबर 13 में माइनस करेंगे, ये भी शेड्यूल नंबर 13 में माइनस करेंगे, राइट। तो आपने ये पढ़ लिया होगा। जस्ट वी हैव क्लैरिफाइड व्हाट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? सब बोलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। प्लीज वो एग्जाम्पल जो आपने दिया ना, वो था ना नीचे। हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, बस। हाँ। हाँ, अभी यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि आपने जो 500 रुपीज जो हमें इनकम हो रही है बैंक को, राइट, हम्म वो कब मिलेगी? जब वो XYZ जो है वो पे करेगा 10,000, जो नहीं, हमने एडवांस में यहाँ हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, यहाँ एडवांस इंटरेस्ट में। एंड डिस्काउंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 का है ना, 50,000 का, तो बिल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ हम क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ टू बैंक अकाउंट यहाँ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्स 10,000 की आई ना, तो 10,000, 9,500 हमने डिस्काउंट दिया, और 9,500 हमको बैंक अकाउंट, मतलब ये पार्टी अकाउंट, राइट, पार्टी मतलब हमारा नाम लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दी है, ये जनरल एंट्री आती है। जब बिल डिस्काउंट करते हैं बैंक, तो बिल्स उसके पास आती है, तो बिल्स अकाउंट डेबिट 10,000 की बिल्स आई है। इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारा इनकम कितना हुआ, 500, तो हमको कितना पे करना है, 9,000। ये 9,000 मेरे अकाउंट में जाएंगे, 500 ऑलरेडी उन्होंने इनकम जनरेट कर दी है। लेकिन ये 500 में दो पार्ट है, 1 मंथ का अलग है, ये 2 मंथ्स का अलग है, क्योंकि 1 मंथ इस साल आएगा, 2 मंथ नेक्स्ट ईयर आएगा। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। यस सर। ओके, तो मूविंग फर्दर, आगे आगे पढ़ते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, ये तो हो गया ना, इंटरेस्ट ऑफ 40,000 ऑफ डाउटफुल डेट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट देख लो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला रहा, राइट। यहाँ 4 नंबर, 4 है 5 है, या 5 नंबर लिख देते हैं हम, ये 5 नंबर लिख देते हैं, यहाँ 5 नंबर लिख देते हैं, राइट। तो लिख दिया, ओके, हो गया। अभी क्या करेंगे हम, अभी करेंगे अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे, राइट। तो अकाउंट्स एक्चुअली मैंने ड्रॉ करके नहीं रखे हैं, तो हम ये अकाउंट ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो पहले ये रिमूव करना पड़ेगा मुझे, और बाद में ही अकाउंट में ड्रॉ कर पाऊंगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करो, राइट। चलो, है आपके पास, या मेरे साथ साथ गिनोगे? ये 1 नॉट है ना, बहुत भयंकर है, मतलब जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, आराम से टाइम लेता है मेरे जैसा। ओके, तो ड्रॉ करो चलो सब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा बैलेंस लीजिए। शीट नहीं, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट की एक भी डिटेल भी नहीं दी ओके। है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करो। तो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं आपके साथ साथ, थोड़ा टाइम जाएगा। और शेड्यूल बनाने हैं ना, कितने शेड्यूल बनाने हैं? 4 शेड्यूल बनाने हैं, राइट। चलो लिखता हूं मैं आपके साथ साथ, राइट। एग्जाम्पल नंबर
कौन सा है? 12, वसंत बैंक लिमिटेड, राइट, वसंत बैंक लिमिटेड। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वसंत बैंक लिमिटेड एज ऑन 31, कौन सी तारीख है? 31 मार्च, 31 मार्च 2014। और बाद में हम क्या करेंगे, आराम से ऐसा 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ शेड्यूल नंबर, यहाँ अमाउंट इन रुपीस, मीन्स करंट ईयर, राइट, यहाँ पर्टिकुलर। तो शेड्यूल तो हमको पता है, 1 में क्या लिखेंगे? इनकम लिखेंगे, इनकम, IOP, राइट। तो इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल नंबर 13। अदर इनकम, अदर इनकम 14। बाद में इसका टोटल करने के लिए रहने देना है, मतलब यहां ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, राइट। सेकंड, एक्सपेंसेस, अंडरलाइन, IOP, IOP, राइट। तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड, वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, and P for provision and contingencies. यहां टोटल A लिखते हैं, यहां टोटल B लिखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो आएगा वो A माइनस B, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है ना, बैलेंस वो लिखना है तो यहाँ हो सकता है, राइट। एंड बाद में आएगा एप्रोप्रिएशन, पॉइंट नंबर 4, ये 3 हो सकता है, ये पॉइंट नंबर 4 हो सकता है, राइट। और यहां लिखते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। तो जो भी एप्रोप्रिएट करेंगे हम लिखेंगे। इसमें पहला है स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ले जाना है एज पर रूल्स, और बाकी का तो जो बोलेंगे वो ले जाएंगे, इसमें चिंता नहीं है हमको, राइट। अभी ये हो जाने के बाद यहां बंद कर देते हैं, और अभी शेड्यूल्स, राइट। तो 4 शेड्यूल है हमारे, राइट। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही लिखना है, राइट। पहले मैं पूरा लिख देता हूं, मतलब पूरा पेज है ना, ले लेना है, सिंपल है, राइट। तो यहां लिखते हैं शेड्यूल, पहला कौन सा था? 13, यहाँ 14 एंड 15 है, यहाँ डैश है, हाँ, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, सॉरी। और ये 15 16 है ना, 13 14 15 16, ये 15 और ये 16 है। तो शेड्यूल नंबर 13 क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अर्न, राइट, 4-5 लाइन। शेड्यूल नंबर 14, राइट, इसमें अदर इनकम, अदर इनकम थोड़ा लाइन ज्यादा होगा, अदर इनकम का लाइन थोड़ा ज्यादा होगा। शेड्यूल 15, सॉरी 14 15 आ गया ना, 13 14, हाँ, शेड्यूल नंबर 15 कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपांडेड, इंटरेस्ट एक्सपांडेड। तो थोड़ा 4-5 लाइन, राइट, क्योंकि प्लस माइनस करना हो तो, और आपने एडवांस में ऑलरेडी एग्जाम की फीस भर दी है, तो चिंता मत करना।
सप्लीमेंट्री यूज करना। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइट। इसमें तो थोड़ा ज्यादा रखना क्योंकि प्लान मतलब सब तरीके का एक्सपेंसेस यहाँ आता है, राइट। तो यहाँ लिख देना, सिंपल बात है, राइट। तो इतना जल्दी 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 एक ही लाइन ड्रॉ करके आप लिख सकते हो। ऐसा अभी क्या करना, ऐसा ऐसा करके तो मेरा मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छी तरह से शेड्यूल दो दिए हैं। मतलब हर बार एक बार पेन उठाई ना तो रुकनी नहीं चाहिए, जहां तक जाए वहां तक लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक सब मेरे साथ हैं अभी, हो गया इतना, हो गया। यस सर। ओके, तो हम आगे का कर रहे हैं, ठीक। तो इनकम अभी क्या करना है हमको, जो मतलब बैलेंस शीट वाला है ना, बैलेंस शीट वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, वो जो एग्जाम्पल है ना, इसमें वन बाय जाना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 300 है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 300। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, बोलो, कोई बोलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, किस शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल नंबर 13। 13। वेरी गुड, इट्स मेन इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अदर इनकम एंड मेन इनकम क्या है। जो जो मेन इनकम है, जो लोन देना और एडवांसेस देना, उसके हिसाब से जो आता है उसको क्या लिखेंगे हम, मेन 13 में इंटरेस्ट। और बाकी का जो इनकम है वो कहाँ लिखेंगे, 14 में लिखेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये जो है ना, ये इंटरेस्ट ऑफ 40 डाउटफुल डेट्स, राइट, रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, वो हम बाद में लिख देंगे। तो पहले हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 लिख देना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये मेन इनकम है तो शेड्यूल नंबर 13 में जाके यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। और रॉन्गली डेबिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड है, यहां से मैं बाद में करूंगा। क्यों, क्योंकि भाई बाद में आएगा तो बाद में कर दूंगा। कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन आप यहाँ भी कर सकते हैं, 300 माइनस, ये 300 माइनस वो कितना है 40 है ना, तो यहाँ ये भी कर सकते हैं। और बेटर बेटर हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ लिख देंगे पहले, और बाकी का रॉन्गली क्रेडिटेड रॉन्गली डेबिटेड बाद में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट है बाद में प्लस माइनस जो भी है वो शेड्यूल में से प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो 300 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कौन सी इनकम है, 13 या 14 में लिखो, 15 सर। 15 इट्स एक्सपेंसेस। फिक्स डिपॉजिट हम रखते नहीं है, बैंक बैंक लेती है तो इंटरेस्ट देती है, तो ये 15 में आएगा। मतलब आपकी जो नस है ना वो, मतलब वो शॉर्ट नहीं जानी चाहिए, राइट। तो 275 में कहाँ लिखूं, शेड्यूल नंबर 15 में, ये हमने इंटरेस्ट एक्सपांड किया है। तो शेड्यूल 15 में लिखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है, 275, यस 275। कमीशन 10 रुपीज, कमीशन, ये तो सिंपल कमीशन है ना, तो नहीं दिया है तो 14 में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 14 में। तो 14 में लिखो कमीशन, अदर इनकम में कमीशन 10 रुपीज। हाँ एक बात तो रह गई, किसने बोला था यहाँ रुपीज इन 000, जैसा लिखा है, हाँ 1000 लिखा था, 1000 रुपीज इन 000, तो डापन डाई नहीं होने का, 3 0 लिख देने का, राइट। तो यहाँ भी रुपीज इन 000, मतलब 300 लिखे तो 300, मतलब 3 0 लगा के रखना। ओके, सो कमीशन 14 आ गया। एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, इट इज ऑल्सो 14, राइट। अदर इनकम है एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज, 14 में लिखो अदर इनकम में एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज
कितना है 20 सर, तो 20 लिख दिया, राइट। बाकी का हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो, सैलरीज एंड अलाउंसेस, कौन सी इनकम आएगी? सैलरीज एंड अलाउंसेस। अरे सर ये एक्सपेंस है, बैंक जॉब में नहीं जाती है, राइट, जॉब करने जाती है, आर्टिफिशियल है सर, तो ये तो एक्सपेंस हुआ ना। तो कितना 150 एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का शेड्यूल नंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, शेड्यूल 16 में। राइट डाउन सैलरीज एंड अलाउंसेस 150, तो 150 लिखेंगे, ज्यादा कम नहीं लिखना, राइट। हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन बिल्स, 150 152 है ना, डिस्काउंट ऑन बिल्स 152, मतलब नेट नहीं दिया है ना डिस्काउंट ऑन बिल। तो इसमें कुछ है ना, ये 30 रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमने लिखा था ना यहाँ, डिस्काउंट ऑन बिल पहला नंबर का। तो डिस्काउंट ऑन बिल्स क्या है? मेन इनकम है, तो कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट अर्न में लिखो, यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन बिल्स। कितना है? ग्रॉस है ना 152, माइनस कुछ करेंगे ना, रिबेट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना था? 30,000 था, पर 30 निकाल के 122 यहां लिख लेते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हो गया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 240 कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, मेन कैश क्रेडिट वो सब करना है, तो मेन इनकम है, तो मेन इनकम में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन सीसी 240, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट मेन इनकम है, राइट। आ गया। इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट 30, तो ओडी पे ब्याज लेना भी मेन है, वो ओवरड्राफ्ट तो देती है ना, तो यहां ही लिखो इंटरेस्ट ऑन ओडी ओवरड्राफ्ट 30 है, तो 30 लिख देते हैं। हो गया। इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, कौन सी इनकम है ये तो एक्सपेंस है साहब, इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग बैंक इसमें सब देते हैं ना, तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है? 87, 87, ओके। पोस्टेड टेलीग्राम एंड स्टैम्प, कौन सी इनकम है ये? अरे सर ये तो एक्सपेंस है, क्योंकि पोस्टेज का वो पोस्टमैन थोड़ा है, बैंक। तो पोस्टेज टेलीग्राम स्टैम्प, तो देखो पोस्टेज टेलीग्राम स्टैम्प, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट है, टैक्स एंड लाइसेंस है, एंड ऑडिट फीस है, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंस है सर, राइट, क्योंकि ये इनकम नहीं हो सकती ना, तो हम लिख दे सब, राइट। तो यहां आओ लिख दो, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पोस्टेज एंड टेलीग्राम पहले था, हाँ, अभी टेलीग्राम नहीं है, अभी तो एसएमएस है, एंड स्टैम्प, राइट, एन है, राइट। सन्ड्री एक्सपेंसेस वो भी 10 है सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो 20 है। रेंट, तो ऐसा मानना नहीं है रेंट इनकम है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं, रेंट इनकम भी हो सकता है, लेकिन बैंक का वो ड्यूटी नहीं है भाई कि रेंट पे दे सब। रेंट कितना है? 15, तो 15 लिखता हूं। टैक्स ये सिंपल टैक्स है, लोकल टैक्स होता है ना, टैक्स एंड लाइसेंस, टैक्स एंड लाइसेंस 10 रुपीज। ऑडिट तो करवाना पड़ता है ना, ऑडिट फीस
एक्सपेंस है 10, राइट। चलो ऑडिट फीस तक आ गया, हाँ सर आ गया, चलो हो गया, यहां तक हो गया सर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया है। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो ये 16 में आएगा ना, मतलब सैलरी टू एमडी यहाँ कुछ नहीं है, तो अलग से 30 हमको लिखना पड़ेगा, तो शेड्यूल नंबर 16 में ही आएगा। तो शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आगे लिखो सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30, तो 30 यहां लिखेंगे, हो गया, मतलब उसका एडजस्टमेंट भी हो गया है, राइट। बेड डेट्स 40, क्या आएगा बेड डेट्स? बेड डेट्स 40 क्या होता है? बेड डेट्स 40 क्या होता है? प्रोविजन सर। ये तो बेड डेट्स हो गया ना, मतलब बेड डेट्स है, राइट। कहाँ आएगा? बोलो। सर 13। क्या 13 में आएगा 13 में आएगा? क्या प्रोविजन। करेंगे, क्या करेंगे 40 का? बेड डेट का 14 का क्या करेंगे? कोई यहाँ लिंक है? बेड डेट 14 राइट डाउन। Interest on 300, 122 to 40, 30, right? Write down, write down. In this example, not इसे पीछे लिखो, 16 के बाद लिखो. In this example, bad debts rupees 40, and interest of 40 sorry क्या लिखा आपने? Bad debts 40 and 1 minute, क्या लिखा? फिर से लिखो. In this example, bad debts rupees 40 will be deducted from schedule number 13 interest earned, right? So interest earned, full stop, new line. Interest of rupees 40, write down again, interest of rupees 14 for bad debt, for doubtful debts, write down 40 for doubtful debts was wrongly credited to interest on loan accounts. So it will be credited to provision and contingency. It will be credited to provision and contingencies. Provision and contingencies. Right. तो राइट डाउन शेड्यूल नंबर 13 में से यहां लिख दो बैड डेट्स -40, बैड डेट्स -40,
एंड यहां हमने प्रोविजन का कुछ नहीं लिखा है, तो राइट डाउन नोट वन प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, राइट, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। तो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में यहां लिख दो बैड डेट्स हमारा होगा 40, बैड डेट्स 40, राइट, इतना इफेक्ट यहां आएगा। और ये रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट, मतलब माइनस कर दिया यही, राइट। चलो अभी है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यहां सब सब यहां तक हो गया, एक ही बाकी है। क्या बाकी है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मतलब वो इनकम टैक्स की प्रोविजन भी होगी ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहाँ है? यहाँ टैक्स कहाँ काटा है इसमें देखो, शेड्यूल में, और सॉरी फॉर्मेट में टैक्स है नहीं है। तो टैक्स इंक्लूड्स हियर, यहाँ टैक्स ही इंक्लूड होता है प्रोविजन। तो प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आएगा। इट मींस ये टैक्स प्रोविजन यहां भी लिख सकता हूं मैं, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां लिखना है, कितना लिखना है मुझे नहीं पता है, क्योंकि दिया गया है क्या, दिया गया है प्रोविजन ऑफ टैक्स इज टू बी मेड 55%। 55% ऑफ व्हाट, राइट, यही यक्ष प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहां मैं ये इसको नीचे ले जाता हूं, राइट, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अभी है ना समझने की जरूरत है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इजी है ऐसा मत मानना, राइट, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आप गड़बड़ी करोगे, क्योंकि 55% किसका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, राइट। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे पहले, अभी एक ही बाकी है, एक ही बाकी है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये हम टोटल कर सकते हैं, शेड्यूल 13 का टोटल कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई इनकम बाकी नहीं है, राइट। शेड्यूल 14 का टोटल कर सकते हैं। सो शेड्यूल 13 का टोटल कितना आता है, आप टोटल करके मुझे बताओ। ये तो 30 आता है, राइट, मुझे उसे चिंता नहीं है। ये कितना आता है? 362 आता है, राइट। शेड्यूल नंबर 16 का कितना आता है? कितना आता है? शेड्यूल नंबर 16 का बोलो बोलो बोलो। 255। कितना? 255। 255। ओके, तो 255 इज करेक्ट आंसर। तो 255, राइट। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो, नोट नंबर 2। ये किसी का ऑडियो चालू है, बंद कर देना। शर्मा तुम्हारा चार्ज चालू है। कैलकुलेशन, बंद है सर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आएगा, समझ जाना, राइट। तो पहले मैं समझा देता हूं क्या क्या करना है। तो लिखो टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 13 प्लस 14, यहां लिखना है, राइट, क्योंकि ये इनकम है, लेस टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 15 प्लस 16, राइट। ये इनर में लिखना है, इनर में लिखना है, राइट। यहां लिखो प्रोविजन फॉर, एनपीए आता है कि नहीं आता है, हमने गिना है ना, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रोविजन गिनो, ये गिनो वो गिनो, जो भी है। बैड डेट्स जो प्रोविजन में लिखा है, मतलब ये प्रोविजन भी माइनस करना है। बाद में जो आता है
ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। ये जल्दी तुमको समझ में नहीं आएगा। अभी इस पे क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पीबीटी का जो परसेंट है, राइट, टैक्स इज इक्वल टू पीबीटी इंटू परसेंटेज जो आएगा। और जो आता है ना भैया, ये जो आता है ना, वो वापिस कहां जाएगा, ये प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में जाएगा। समझ में आया? कैलकुलेट करना है अलग बात है, और बाद में क्या जाएगा, टैक्स प्रोविजन है वो कहां जाएगा, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज में जाएगा। इतना गोखीफाइड करना है आपको, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 13 14 का टोटल करेंगे, इसमें से 15 16 ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और प्रोविजन में सब प्रोविजन माइनस करेंगे एक्सेप्ट दिस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बस इतना हुआ। और बाद में टैक्स कैलकुलेट करके वहां कहां रखेंगे भाई, प्रोविजन में रखेंगे। ओके सर, समझ में नहीं आया, आगे आगे बढ़ो। चलो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अभी ये आपको थियोरेटिकल समझा दिया है, राइट। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, वो थियोरेटिकल है, आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है भैया, राइट। तो ये जो है, ये समझ में आ गया तो हम उसका आंसर लिखेंगे। तो राइट डाउन टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 13 एंड 14, कितना होता है टोटल करो, और मुझे आंसर दो कृपया करके। शेड्यूल नंबर हमने कैलकुलेट तो ऑलरेडी किया है ना भैया, ऊपर भी लिख दिया है। 682। करेक्ट आंसर 682 लेस लेस। ओके, तो यहाँ यहाँ हम लिख सकते हैं ना, जो है ना, लिखो ना। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल कितना होता है, चलो ये बाकी रह गया ना, इसलिए आप कितना होता है 652। 652. 652। ये 30 हो गया, राइट, ये 6 हो गया, और यहाँ हो गया। तो चलो 652 30 में लिख देता हूँ। कहाँ गया बेटा ये, थोड़ा, यस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 652, राइट। यहाँ 30 लिख देता हूँ, टोटल हुआ 682 सर। ओके, नाउ 15 का टोटल 362 शर्मा ने ऑलरेडी बताया है, ये 255 ऑलरेडी है, यहाँ पता नहीं है, बस इतना हो गया है। तो ये टोटल ऑफ 15 16 करो, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ टोटल ऑफ 15 लेस टोटल ऑफ शेड्यूल 15 एंड 16 का टोटल करो, कितना होता है 617। 617। ओके, वेरी गुड। अभी 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 माइनस करना है क्या आप, कश्यप अपना वॉइस बंद कर दो। ओके, तो प्रोविजन फॉर एनपी एंड बैड डेट्स है ना, तो ये शेड्यूल 1 बनाया है ऑलरेडी, मतलब ये 40 है ना, यहाँ ऑलरेडी है, कहाँ है, एक मिनट, यहाँ ऑलरेडी है ना, ये इसमें तो 40 लिखा गया है ना, क्योंकि हमने नोट 1 बना दिए ना यहाँ, राइट। तो ये 40 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, यस, क्योंकि ये बैड डेट्स है ना, तो ये इसमें से माइनस करेंगे। और एनपीए का कुछ नहीं है, एनपीए का अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 90 होता तो हम 90 कर देते, लेकिन है नहीं कुछ, तो यहाँ लिखो बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना लिखो, बैड डेट्स 40 था सर, 40। अभी कुछ है नहीं, देखो प्रोविजन में देख लिया, एक ही पर्टिकुलर थी, तो उसका टोटल कितना हुआ 657 हुआ सर। और ये माइनस करने के बाद ये पीबीटी आया, पीबीटी कितना आया 25, कितना आया Yes, sir. 25। ओके, तो पीबीटी कितना आया 25। अभी हम बोलेंगे, अभी देखो हमारा जो क्वेश्चन था ना, प्रॉफिट जो है उस पे टैक्स 55% है ना, तो राइट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स इज इक्वल टू पीबीटी इंटू परसेंटेज। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25% है, उसका कितना परसेंट करना है 55% इज इक्वल टू कितना हुआ 13.75 हुआ,
ओके सर, 13.75 13.75 राइट। अभी याद रखना है ये 13.75 कहाँ लिखना है, ये नोट में लिखना है भाई, 13.75 नोट 1 में लिखना है। और उसका टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, काउंट करो टोटल, 40 प्लस 53.75। अभी ये 53.75 मेरे मेन टोटल में आएगा 53.75। अभी कोई चिंता नहीं है सर, तो कैलकुलेट कर दीजिए टोटल। ये 670.75 मेरे पास आंसर है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। राइट, हो गया ये, सबको समझ में आ गया ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करने के बाद हमने कहा लिखा नोट 1 में, क्योंकि इसका कोई शेड्यूल नहीं है। राइट, तो नोट 1 में लिखा, तो ये इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी नीचे किया है नोट 2 में, तो यहाँ लिख सकते हो नोट 2, काइंडली रिफर नोट 2। 13.75 कहाँ आया, नोट 2, उसका टोटल ऊपर गया। तो अभी प्लस माइनस हम आराम से कर सकते हैं। तो ए माइनस बी, 682 माइनस 670 कितना आता है, तो ये 1.25 11.25 में लिख देता हूं। अगले का बैलेंस मुझे नहीं पता है, तो ये है 11.25। राइट, अभी हम अपोर्शनमेंट करेंगे ना, अप्रोप्रिएट करेंगे। राइट, ये मैंने आगे बहुत लिख दिया, यहाँ अप्रोप्रिएट करेंगे सर। ओके, तो 25%, ये अप्रोप्रिएशन 25% ऑफ व्हाट, ये 11.25 है, उसका 25% हम तो ले ही लेंगे। कितना होता है, 2.81। 2.81 वेरी गुड, 2.81, तो 2.81। अदर जगह और ट्रांसफर है, अदर ट्रांसफर है, नहीं है सर, कोई बात नहीं, नहीं है तो 2.81 हम लिख देते हैं। इसमें से ये अपॉर्चमेंट माइनस करके, राइट, यहाँ सॉरी ये नहीं करेंगे, बाकी का कहाँ ले जाएंगे, तो टोटल, सॉरी यहाँ टोटल तो पहले लिख ही देना है, टोटल तो लिख ही देना है 11.25। इसमें से 25 कहाँ लिख जाएंगे, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व, और ये कहाँ ले जाएंगे, राइट डाउन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो बाकी का जो डिफरेंस है 11.25 में से 2.81 माइनस करो, तो 8.44 आता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, थोड़ा अटपटा है, चटपटा है, लेकिन ध्यान रख के लिखना है। तो 8.44 इज करेक्ट आंसर। आ रहा है ना सबको, राइट? यस सर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या था, ये प्रोविजन 55%, इसमें से कंटिंजेंसीज का और जो बैड डेट्स है वो सब माइनस करके जो आता है पीबीटी फाइंड करना है, उसका 55% आता है। बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। अभी क्या करूंगा, अभी ये एग्जाम्पल यार ओवर हो गया है, बाकी के जो एग्जाम्पल है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे, शायद मैं वीडियो भी बना सकता हूं तो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो है ना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हम कंटिंजेंसीज ये कैसे फाइंड करते हैं। तो कंटिंजेंसीज का नोट 1 बनाएंगे हम, या जैसे यहाँ बनाया इन नोट 1 में, और इसमें ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, और उसके लिए ये 40 माइनस करके ऊपर का सब है वो माइनस करने के बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स की अमाउंट, और वो टोटल करके ही यहाँ जो शेड्यूल नहीं दिया गया है ना, ये शेड्यूल नहीं दिया गया, इसमें हम लिख देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? आपको समझ में ये आ गया होगा। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव यू कैन आस्क नाउ। आपको अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, राइट? अदरवाइज ये इजी है, थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत है, बाकी एवरीथिंग इज इजी, राइट? सिर्फ ख्याल क्या रखना है, मेन इनकम कौन सी है, सब्सिडरी इनकम कौन सी है। मेन इनकम आएगी शेड्यूल नंबर 13 में अदर इनकम आएगी शेड्यूल नंबर 14 में। और मेन एक्सपेंस कौन सा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड किस पे करते हैं, तो जो अकाउंट्स होते हैं ना, सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट होता है। यहाँ करंट अकाउंट क्यों नहीं आया, करंट अकाउंट देखो शेड्यूल नंबर
15 में करंट अकाउंट क्यों नहीं आया? क्योंकि करंट अकाउंट पे कोई भी ब्याज मिलता नहीं है, इसलिए नहीं आएगा, राइट। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जो इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जाएंगे। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। समझ में आ गया सबको? तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस